Well, good morning, students. Let's start today's class. As you all know that it was already stated to you that we're going to read the next text of SR. So make sure everyone that you're open with the book and let's continue. But before that, let's see the information of the lecture. September 8th, class 10th, English, Footprints Without Feet. We are reading the book name. And this is lesson number 6 we are going to read. And that's The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. The making of a scientist means like we're gonna read about someone, how's how was his or her life. That we'll read in the text basically. And students, this is lecture number 1. So later we'll come to know who was he or she, whether it was he or she. I suppose we must have read it. Let's see further. I think it's all visible. I can see in my cell phone. That's okay. Okay, now see every one of you. The making of a scientist means कि भाई किस तरह से एक साइंटिस्ट की जो है लाइफ की जो जर्नी थी वो शुरू हुई थी. How it all started. So let's see. Richard E. Upright has received a Shirley Scholar Award and the Turing Flow Award for biochemistry and molecular biology. Biochemistry and molecular, these are the parts of your science subject. Though molecular means like the moles of the body of the living being. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. Now you see, एक यही चीज थी जिसने जो है फैसिनेशन मीन्स उसको ऐसा मोहित कर दिया था कि बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट करता था, आगे चीजें करता था, जिसने जो है उसके लिए साइंस के संसार के जो दरवाजे थे उसके लिए हमेशा के लिए खोल दिए थे. That means the science world was opened for him when he showed interest in butterflies. Let's see, students, read and find out questions. These are very important points. We are supposed to find out the answers of these questions when we just read out. The first one is, how did a book become a turning point in Richard Upright's life? And the second one is, how did his mother help him? So dear students, the further we are going to read the text, from that we need to find out these two questions answers. Okay, let's start. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. First, what is scout? Scout means like NCC means the National Cadet Corps Committee's member basically. That's called the scout of the year. Means he got the award in the scout, right? Then 22 साल की उम्र में at the age of 22, a former scout of the year, यानी कि 22 साल से पहले जो है scout of the year रह चुका था, excited the scientific world with a new theory on how cells work. Excited means बड़ी साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर, साइंस का जो संसार था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशन लेकर के आया था वो, कि भाई उसकी जो थियरी थी वो क्या थी कि सेल्स, हाउ सेल्स वर्क. सेल्स क्या होता है बेसिकली? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का, लिविंग बीइंग की बॉडी का जो है, जो भी सबसे छोटा पार्ट होता है, यू मस्ट स्टडी इन योर साइंस, दैट्स कॉल्ड द सेल्स. कि भाई ये जो सेल्स होती हैं किस तरह से वर्क करते हैं, काम कैसे करते हैं लिविंग बीइंग के अंदर, उसकी थ्योरी ने जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन को क्रिएट कर दिया था उस समय में. Richard H. Everett and his college roommate explained the theory in an article
in the Proceedings of the National Academy of Science. And Proceedings of the National Academy of Science, this is the journal there. वहां पर उसने क्या किया, रिचर्ड एच ब्राइट ने और उसके एक रूममेट ने, दोनों ने एक्सप्लेन किया थियोरी को, एक आर्टिकल लिखा जो प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का जो इवेंट था, वहां पर उन्होंने जो है आर्टिकल के अंदर ये पूरा एक्सप्लेन किया सेल्स की थ्योरी को कि हाउ इट वर्क्स. इट वाज द फर्स्ट टाइम, it was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये पहली बार था जब इस तरह की जर्नलिज्म और मैगजीन्स ने, जर्नल ने पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट्स की जो है वर्किंग को पब्लिश किया था. जो कॉलेज स्टूडेंट्स की वर्किंग थी उसको फर्स्ट टाइम जो है पब्लिश किया गया था इस तरह की जर्नल के अंदर. और ये फर्स्ट टाइम था, दैट्स व्हाई इट बिकेम वेरी एक्साइटेड or very exciting for the people. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. आप सबको शायद नहीं पता हो इसका मीनिंग क्या है कि स्पोर्ट्स के अंदर हमारा जो राइटर है वो एक्सप्लेन करके बताता है, एग्जाम्पल दे करके बताता है. ये ऐसा था जैसे कि कोई स्पोर्ट्स के अंदर आता है. लीग्स मीन्स होता है क्वालिटी और एबिलिटी, मीन्स ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स और क्लब्स और टीम्स जो कि मैच खेलते हैं अमंग देमसेल्व्स, अपने आप ही मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं. और फिर वो आगे बताता है कि एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में एक तो उसने ये काम कर दिया. सेकंड वो क्या करता है कि हिटिंग अ होम रन. होम रन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसबॉल एक गेम होता है. बेसबॉल गेम के अंदर जो है ये क्रिकेट की तरह होता है, बैट भी होता है, बॉल भी होती है, बट रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. रूल्स आर अ बिट डिफरेंट. होम रन मीन्स आप ये लगा के चलो जैसे कि क्रिकेट के अंदर एक सिक्स मारना, छक्का मारना जिसको हम बोलते हैं, सिक्स मारना, दैट्स कॉल्ड होम रन. कि भाई एक 15 साल के लड़के ने जो है अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम में ही उसने छक्का मार दिया. बेसबॉल की लैंग्वेज में ये हमारा राइटर हमें समझा रहा है. एट योर फर्स्ट टाइम एट बैट, फर्स्ट टाइम आपको बैट मिला और आपने मिलते ही जो उसमें छक्का मार दिया, राइट. दैट मीन्स इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर द पीपल, लोगों के लिए इन द साइंस वर्ल्ड. For Richard Bright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. अब रिचर्ड ब्राइट के लिए तो लॉन्ग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स स्टूडेंट्स अंडरलाइन करके नोट करते रहना, दैट्स सीरीज ऑफ अचीवमेंट्स. जो अचीवमेंट उसकी थी, उसकी जो सीरीज थी उसमें से एक चीज थी वैसे काफी समय के बाद वो कहता है साइंस एंड अदर फील्ड्स, दूसरी फील्ड में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज. और ये सारी बात जो शुरू हुई थी ये कहाँ से शुरू हुई, ये एक बटरफ्लाई से शुरू हुई थी. An only child, Bright grew up north of Reading, Pennsylvania. There, Pennsylvania is the name of a particular, we can say district or a place. वहां पर एक पर्टिकुलर जगह का नाम था रीडिंग. नॉर्थ में रीडिंग जो था जगह का नाम था जहां पर वो रह रहे थे. और वो अकेला ही चाइल्ड था अपनी मदर का. ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग. नॉर्थ में रीडिंग के, रीडिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस, पेंसिल्वेनिया जो कंट्री है उसमें. देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर, ही सेड. उसने क्या बताया कि भाई मैं जो है वहां पर कुछ ज्यादा नहीं कर सकता था, कुछ करने लायक नहीं था मेरे लिए. वो कहता है आई वाजंट, देयर वाजंट मच आई कुड डू, कि भाई मैं कर सकता था. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. वो कहता है कि भाई ऐसा तो नहीं था कि भाई मैं जो है अकेला था कि भाई टीम मेरी अपनी अकेले की एक जो टीम थी या तो फुटबॉल खेल लें या फिर बेसबॉल खेल लें, ऐसा तो कुछ नहीं था क्योंकि मैं अकेला था. बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू. नाउ ही इज टॉकिंग कि भाई मैं एक चीज तो कर सकता था वहां पर. और वो क्या कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, कि चीजों को इकट्ठा कर सकता था. सो ही डिड, और हमारा राइटर बताता है और उसने ऐसा ही किया. एंड डिड ही एवर, और हमेशा ऐसा ही करता रहा. Beginning in kindergarten, Bright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. Now you see what we find here, since childhood, kindergarten means you can understand this is nursery, UKG, LKG, these classes basically. UKG और LKG में उसके जो
डिटर्मिनेशन था लाइक बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का, दैट वाज सेम, वो ऐसा ही था जैसे वो शुरू हुआ और एंड तक ऐसा ही रहा. दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, जिसने जो है उसकी सारी एक्टिविटीज को उसमें जो है मार्क्स कर दिया. मार्क्ड मीन्स लाइक मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम और noticeable. He also collected rocks, fossils, and coins. Rocks means पत्थरों को, fossils means like the remaining parts of animals or plants, dead body के जो होते हैं उनको collect करता था वो. Means remaining parts जो बचे होते थे काफी पुराने पड़े हुए हैं उनको collect करके कुछ ढूंढने की कोशिश करता था. And coins और सिक्कों को इकट्ठा करता था. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing at night, or he became an eager astronomer. Eager means वो बड़ा उत्सुक आतुर जो है, एक खगोल शास्त्री भी था. उत्सुकता थी उसके अंदर इन चीजों को लेकर के. वो रात को जो है स्टार्स को घूरता रहता था, जो तारे होते हैं उनको जो है वो घूरता रहता था, स्टार्स को बाय गेजिंग एट ऑल नाइट, पूरी रात कई बार जो है. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. Sharp mind उसका था हमेशा से. और ड्राइविंग क्यूरोसिटी मीन्स कि भाई वो आगे बढ़ते रहना चाहता था, उसकी जिज्ञासा थी कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहे. ड्राइविंग क्यूरोसिटी उसको, शार्प माइंड था उसको इंस्पायर करती रहती थी आगे बढ़ने के लिए. ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. और उसकी जो एक मदर थी, हैड अ मदर बेसिकली यहाँ पर बताया गया है बिकॉज फादर नहीं था. सो मदर थी तो हमेशा जो है उसको इनकरेज करती रहती थी. हिज इंटरेस्ट, जिसमें भी उसका इंटरेस्ट होता था इन लर्निंग, कुछ सीखने को लेकर. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. और उसकी मदर जो थी उसी ट्रिप्स पर लेकर के जाती थी. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरास, माउंटिंग मटेरियल्स एंड other equipment and helped him in many other ways. अब जो उसकी मदर थी देखो उसके लिए क्या क्या करती थी, उसको ट्रिप्स पे लेकर के जाती थी. बॉट हिम टेलीस्कोप्स, और उसके लिए टेलीस्कोप खरीदती थी, माइक्रोस्कोप खरीदती थी, कैमरास खरीदती थी, माउंटिंग मटेरियल्स खरीदती थी, एंड अदर इक्विपमेंट, एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज. और वो जो है कई और तरीके से उसकी हेल्प किया करती थी, सहायता करती थी उसको उसकी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने के लिए. और एब्राइट बताता है फिर, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. मदर, उसकी मदर बताती है, हिज मदर सैड, उसकी मदर ने क्या बताया कि भाई मैं ही केवल उसकी एक संगी साथी कंपेनियन थी जब तक कि उसने जो है स्कूल में जाना शुरू नहीं किया था. आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम. और उसके बाद जो है वो कहती है कि मैं घर पर जो है उसके लिए फ्रेंड्स को लेकर के आती थी. फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर. लेकिन रात में जो है हम चीजें एक साथ किया करते थे. जैसे कि was Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade. अब देखो वो बताती है जैसे उसको पढ़ाना लिखाना चीजें करना, वो सारी चीजें उसको जो है सिखाती थी उसकी मदर. दैट मीन्स व्हाट वी अंडरस्टैंड, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि उसकी मदर ने क्या क्या किया है उसके लिए, विल फाइंड द आंसर इन दीज पैराग्राफ्स, इन स्मॉल पैरास बेसिकली. सो अब वो क्या बताती है कि रिची जो था, रिची इज द शॉर्ट नेम quoted by her his mother. रिची जो था वो कहती है कि भी मेरी पूरी जिंदगी था वो. आफ्टर हिज फादर डाइड, जो उसके पिता के मरने के बाद, व्हेन रिची वाज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची जो था, रिचर्ड जो था थर्ड ग्रेड में था, शी एंड हर सन, वो कहती है, स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल. खाना जो रात का जो खाना खाते थे, डिनर जो करते थे, हर रोज एक साथ करते थे एवरी इवनिंग. इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, काम करने के लिए, अगर उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, और मैं उसके लिए काम तैयार करती थी, काम बनाती थी कि वो इसे करे. नॉट फिजिकल वर्क, ना कि फिजिकल वर्क, बल्कि वो कहती है बट लर्निंग वर्क थिंग्स, लर्निंग थिंग्स, कि चीज़ों को सीख सके. फिजिकल कोई वर्क नहीं था,
learning things थी, means mental work, mind work. Sorry. His mother said, ये बातें उसकी माँ बताती है, he liked it, और वो जो है ना इन सब चीजों को पसंद करता था. He wanted to learn, वो सीखना चाहता था चीजों को. उसके अंदर एक तरह की क्यूरोसिटी थी, जिज्ञासा थी कि वो इन सब चीजों को सीखना चाहता था. And learn he did, और उसने वही सीखा, वही किया. He earned top grades in school, और उसने स्कूल में top grades हासिल किए, top rank हासिल किया. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. और उसकी माता कहती है, उसकी माँ कहती है कि हर रोज की जो चीजें थी, उन एवरीडे थिंग्स जो काम होते थे, he was just like every other kid. वो कैसा था? वो एक दूसरे every other kid, दूसरे बच्चे की तरह था. He was like every other kid, his mother said. By the time he was in the second grade, Everett had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. जब वो सेकंड ग्रेड में था, अब उसकी मदर उसको हमारे बताती है कि एवराइट ने जो है 25 तरह की प्रजातियों की बटरफ्लाईज को इकट्ठा कर लिया था, जो कि उसके घर के आसपास रहती थी, ये पाई जाती थी. अराउंड हिज होम टाउन, उसके होम टाउन के आसपास. इट्स नॉट लाइक घर के आसपास, होम टाउन की वो बात कर रहे हैं, यानी कि जिस एरिया में रीडिंग में वो रह रहा था, रीडिंग इज द नेम इन पेंसिल्वेनिया, वहां पर जो रह रहा था, 25 स्पीसीज उसने जो है अब तक कलेक्ट कर ली थी. नाउ यू सी, species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. रीडिंग पेंसिल्वेनिया के अंदर जो है 6 वीक्स में उसने किस तरह की बटरफ्लाईज को कलेक्ट किया. यू विल रीड दीज नेम्स योर सेल्स, और किसी भी एक बटरफ्लाई के बारे में नेट से निकाल करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे. लेट्स जस्ट फाइंड आउट whether we would get it something interesting or a tedious thing. That matters a lot. So this will be your task to read out these points. Let's go ahead. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. ये बात वो कहता है कि भाई उसे ऐसा लगा कि शायद जो है अब बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो काम था उसके लिए वो खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने सभी स्पीसीज को जो है कलेक्ट कर लिया था. बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. और तब जो है उसकी मदर उसके लिए एक बुक लेकर के आई. गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की बुक थी. किस नाम की बुक थी, क्या नाम था? द ट्रेवलर ऑफ मोनार्क एक्स. इट इज वन ऑफ द बटरफ्लाईज, एक तरह की बटरफ्लाई थी अभी जिसके ऊपर बुक लिखी गई थी. दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाईज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. ये बुक इस बारे में थी कि भाई कैसे जो बटरफ्लाईज होती है, मोनार्क बटरफ्लाई, वो माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मीन्स टू सेंट्रल अमेरिका की तरफ वो क्यों जा रही थी. हाउ ये जो है माइग्रेट करती है. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. और उसके लिए इस बुक ने जो है साइंस के संसार के जो है दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए खोल दिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ये कि मदर उसके लिए कौन सी बुक लेके आई थी. द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, कि भाई किस तरह से वो ट्रेवल करते हैं. इट वाज ऑल अबाउट द मोनार्क बटरफ्लाईज, हाउ दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. दिस इज, और यंग ईगर के लिए उसने जो है ये सारे दरवाजे खोल दिए थे. At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. और बुक के आखिर में क्या दिया हुआ था कि जो रीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया था कि भाई बटरफ्लाईज को स्टडी करने के लिए, कि हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, कि वो माइग्रेशंस क्यों करते हैं उसकी स्टडी को लेकर के. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick. उन्होंने, जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे, क्वेश्चन दिया हुआ था उनको कि भाई बटरफ्लाईज को आप जैसे पकड़ते हो उनको जो है टैग कर दो. टैग मीन्स कुछ चीज को जो है चिपके दो. आर्क्वाट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो.
टोरंटो के अंदर यूनिवर्सिटी में थे ये, कनाडा के अंदर। एवराइट्स मदर ब्रॉट टू डॉक्टर अक्वाज, डॉक्टर अक्वाज को जो है उसकी मदर उनको लिखती है, एंड सून एवराइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स। लाइट एडहेसिव मीन्स होता है कुछ चिपकाने वाली चीज जो होती है, उसको टैग करता है, चिपका देता है टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, मोनार्क्स के जो विंग थे उनके ऊपर जो पंख थे चिपका देता है कुछ। एंड anyone who found the tag, a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Aquat. और कोई भी उसके ऊपर क्या लिखा होता है, अगर ये बटरफ्लाई किसी को भी मिलती है, मोनार्क बटरफ्लाई की बात है, वो जो है क्या करेगा, इस बटरफ्लाई को जो है डॉक्टर अक्वाट को जो है दे देगा, उसके पास भेज देंगे। सेंड मीन्स भेज देंगे इस बटरफ्लाई को, अगर किसी को ये मिलती है और उसको ये टैग मिलता है। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. Now you see what we find. Butterfly collecting का जो सीजन था लगभग reading lasts 6 weeks, 6 हफ्ते तक ही था समर के आखिर में। सी पैराग्राफ बिलो नीचे जो ये दिया हुआ है 6 weeks का सारा प्रोटोकॉल, we can see that, we'll see. If you are going to chase them one by one, कि अगर आप उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, you won't catch very many, तुम ज्यादा को नहीं पकड़ पाओगे, ज्यादा बटरफ्लाइज को कैच नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. और नेक्स्ट स्टेप क्या था ब्राइट के लिए, फ्लॉक मीन होता है ग्रुप, झुंड जिसको हम बोलते हैं। बटरफ्लाइज को जो है बड़ा करना, रेज करना ग्रुप के अंदर, झुंड के अंदर इकट्ठा, यानी कि ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, और फीमेल मोनार्क को वो पकड़ेगा, टेक हर टू कैच अप, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल। और वो जो है उनको बड़ा करेगा, उनके एग्स लेगा, उनको बड़ा करेगा अपने बेसमेंट के अंदर, जिससे कि वो उसके लाइफ साइकिल को स्टडी कर सके। फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, जब एग होता है, एग मींस अंडे से फिर कैटरपिलर निकलता है, इट्स अ साइंटिफिक वर्ड। कैटरपिलर से फिर प्यूपा, और प्यूपा से फिर अडल्ट बटरफ्लाई, ये सारा लाइफ साइकिल को वो स्टडी करना चाह रहा था। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स, और बाद में जो है फिर बटरफ्लाईज के विंग्स को वो टैग करेगा, एंड लेट देम गो, और फिर जो है उन्हें वो जाने देगा, उड़ने देगा, वहां से निकलने देगा। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. और उसका घर जो था सालों तक जो है क्या बना रहा, मोनार्क, जो डिफरेंट मोनार्क्स थी, उनकी जो लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस थी, जैसे कि उसने बताया है, एग से कैटरपिलर, देन प्यूपा एंड देन बटरफ्लाई। ये जो लाइफ साइकिल था, इसकी स्टेजेस के दौरान जो है थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स को उसने अपने पास अपने बेसमेंट में रखा। That was there basically. Sorry. Now you see number and kinds of butterflies collected in 6 weeks. 6 weeks के अंदर उसने कितने नंबर की और किस प्रकार की बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था। You will read it yourselves. एग्जाम्स में वैसे इसका इतना कुछ आता नहीं है, but for the sake of knowledge you can practice. Let's see the next one. Eventually, बाद में क्या होता है, I begin to lose interest in tagging butterflies. अब ब्राइट कहता है कि भाई मैंने जो है मेरा इंटरेस्ट खत्म होता चला गया बटरफ्लाइज को टैग करने का। इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। टीडियस मीन्स होता है स्टूडेंट्स बोरिंग, ये बिल्कुल बोरिंग था, और उधर से जो है कोई भी फीडबैक हमें नहीं मिल रही थी। एब्राइट सेड, एब्राइट ने ये बात बोली, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, और आखिर वो कहता है कि पूरे समय में मैंने जो ये काम किया, he laughed, वो हंसता है, only 2 butterflies I had tagged, मैंने केवल जो है 2 ही बटरफ्लाइज को जो है टैग किया था, were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. अब देखो वो क्या बताता है कि पूरे टाइम में जो है हंसते हुए कहता है, only 2 butterflies I had tagged were recaptured, कितना पूरे समय में उसने कितनी बटरफ्लाइज को जो है टैग किया।
फ्लाई किया, छोड़ा उनको, लेकिन उन सब में से केवल 2 को ही जो है रिकैप्चर किया गया, पकड़ा गया, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स, और वो जो है केवल 75 माइल से ज्यादा नहीं गई थी फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, जहां पर जो वो कहता है मैं रह रहा था। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहता है जहां पर मैं रह रहा था वहां से वो 75 किलोमीटर दूर नहीं गई थी, और केवल इतनी बटरफ्लाइज मैंने टैग की थी, 100,000, और उनमें से केवल 2 को ही पकड़ा गया था, और जो 75 माइल से ज्यादा आगे नहीं गई थी। नाउ सी द नेक्स्ट वन, रीड एंड फाइंड आउट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें इस नेक्स्ट पैरे से, नेक्स्ट फर्दर जो हम रीड कर रहे हैं उसमें से फाइंड आउट करना है। चिल्ड्रन, what lesson does Bright learn when he does not win anything at a science fair? कि भाई उसको क्या सीखने को मिलता है जब वो साइंस फेयर में नहीं जीत पाता है। What experiments and projects does he then undertake? और किस तरह के प्रोजेक्ट्स को वो जो है करने की कोशिश करता है, एक्सपेरिमेंट्स को करने की कोशिश करता है। What are the qualities that go into the making of a scientist? और किस तरह की जो है चीजों की जरूरत होती है, क्वालिटीज की जरूरत होती है एक साइंटिस्ट बनने के लिए। दैट विल रीड इट। 10 minutes left, students. We'll see how much we can read in this page, and then we'll read in the next lecture. Let's see, at least complete 2 or 3 paras. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is. 7th grade में उसको ये पता चला एक्चुअल में कि वो रियल साइंस क्या होती है, उसको ये हिंट मिला कुछ। When he entered a county science fair, जब वो काउंटी साइंस फेयर में जाता है, एंड लॉस्ट मीन्स गुम हो जाता है, दिमागी तौर पर वो चीजें देखता है बड़ी जबरदस्त, रियल साइंस। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग व्हाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग। वहां पर जो है वो बड़ा उदास होता है वहां पर बैठे हुए, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ना तो कर पा रहा था, ना उसको कुछ अवार्ड वगैरह मिला। बाकी अदर्स को जो है काफी अवार्ड्स भी मिले, उन्होंने अच्छा किया। एब्राइट ने बताया कि एब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज। फ्रॉग के जो टिश्यूज थे उसकी स्लाइड्स वो दिखा रहा था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के जरिए वो ये सारी चीजें दिखा रहा था। He realized the winners had tried to do real experiments. अब उसको क्या रियलाइज हुआ कि वे जो विनर्स थे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, एक्चुअल वास्तविक जिनको हम कहते हैं, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, ना कि केवल साफ सुथरी एक डिस्प्ले बना करके दिखा देना, बल्कि उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे रियल थे। दीज वर ऑल रियल एक्सपेरिमेंट्स। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग, और यहाँ पर जो है एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो उसके अंदर थी वो यहाँ पर अपीयर होती है, दिखाई देती है हमें यहाँ पर कि भाई हाउ कॉम्पिटिटिव वाज ही, कि वो कितना कॉम्पिटिटिव था। I knew that for the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और उसने क्या कहा कि भाई नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए मुझे जो है अब रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट was the insect work I'd been doing in the past several years. पिछले कई सालों से मैं ये करता आ रहा हूँ। इंसेक्ट्स का जो वर्क था कि वे जो इंसेक्ट होते हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं। I'd been doing the past several years, काफी सालों से जो है मैं इसके ऊपर वर्कआउट करते हुए आ रहा हूँ। So he wrote to Dr. Akwad for ideas, और उसने डॉक्टर को लिखा आइडियाज के लिए, and back came a stack of suggestions for experiments, means काफी पेपर उसके पास आए जिसमें बहुत सारे सजेशंस लिखे हुए थे, सुझाव लिखे हुए थे कि कैसे करें, क्या करें। Those kept upright busy all through his high school and led to prize projects in county and international science fair. Those kept upright busy, और उन्होंने जो है upright को बहुत ही ज्यादा बिजी रखा थ्रू हाई स्कूल के दौरान, जब हाई स्कूल की स्टडी कर रहा था, इट्स कॉल्ड एट्थ बेसिकली, एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उसको कहां तक लेकर के चले गए वो कि भाई उसको जो है काउंटी फेयर के अंदर प्राइजेस मिले, इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर भी उसको जो है काफी प्राइजेस मिले वहां पर। और ये जस्ट हुआ सजेशंस, जो स्टेक ऑफ सजेशंस भेजे थे डॉक्टर क्वार्क ने।
sorry, for his 8th grade project. Albright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. अब 8th ग्रेड में उसने अपना प्रोजेक्ट क्या बनाया कि भाई ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं वन ऑफ द लाइफ साइकिल कि उनमें बीमारियां कैसे आती हैं और वो क्यों इतनी जल्दी मर जाती हैं एवरी फ्यू ईयर, हर साल। वो कहता है एवराइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। बीटल होता है एन इंसेक्ट लार्ज और ब्लैक, एक बड़ा इंसेक्ट होता है, लार्ज और ब्लैक होता है। उसने ये आइडिया लगाया, थॉट मीन्स, वो कहता है कि भाई डिजीज जो है ना बीटल की वजह से आती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उसने ये कोशिश की कि उसने जो मोनार्क थे, इसके कैटरपिलर्स थे, उसको बड़ा करने की, उसको ग्रो करने की कोशिश की बीटल की प्रेजेंस में। बीटल मीन्स जो ये इंसेक्ट था उसकी प्रेजेंस में इन्होंने इसको ग्रो करने की कोशिश की। वो कहता है आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, मुझे वास्तविक रिजल्ट्स नहीं मिले वहां पर जो मैं उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था। ही सेड, ये बात एब्राइट ने बोली। बट आई वेंट अहेड, मैं आगे बढ़ता चला गया, एंड श्योर्ड दैट, क्या दिखाया, आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। और वो कहता है कि मैंने ये सारी एक्सपेरिमेंटिंग सिचुएशन जो थी, ये सारी की सारी मैंने वहां पे शो की, दिखाई कि भाई मैंने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए, और आई हैड ट्राइड, मैंने कैसे कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किए, दिस टाइम आई वन, और इस समय वो कहता है कि मैंने जो है ये जीते थे प्राइजेस। इसने भी जो है मुझे प्राइजेस जितवाए, काउंटी फेयर के अंदर और इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर। दैट्स इनफ फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। Make sure you are getting this, though if you have any problem you'll be given time to just ask any question, and then we'll have enough discussion, or if it is pending then we'll do in the next lecture also. So thank you very much for today's lecture.